Hello, good evening, everyone. My dear friends, today in this session, I am going to discuss you the next part of the machining operations. Earlier, I had discussed, you can see in the playlist, I have discussed the orthogonal machining operation, the mechanics of orthogonal machining operation, and I have also discussed the force analysis in orthogonal machining operation, the power analysis in orthogonal machining operation. So these few things I have discussed. So now I am going to see, now I am going to discuss you the next, what is the difference between orthogonal and oblique turning operation. Okay. You can see in the playlist what is the difference between, what is the diagram I have already discussed, orthogonal and oblique machining. Now the first machining operation, on the basis of that I will classify, I will differentiate between orthogonal and oblique machinings. Okay. So now the first operation which I am going to discuss, that is your turning operation. Okay. So what is turning operation? Can anyone tell me what is turning and the difference between orthogonal turning and oblique turning? So when we turn, when we reduce the diameter of a cylindrical workpiece with the help of an orthogonal cutting tool, then we will call it as a orthogonal turning operation. And when we will do the turning operation with the help of an oblique cutting tool, then we call it as a oblique turning operation. So now, sir, can you tell me what is the geometry of orthogonal cutting tool and what is the geometry of oblique cutting tool? Yes, I can tell you. So for this, you need to first understand the geometry of a single point cutting tool. तो स्टार्ट करने से पहले मैं इस टॉपिक को आपको थोड़ा ब्रीफ में ज्योमेट्री ऑफ अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल थोड़ा सा बता दे रहा हूं जो हमारे काम का है, और मैं फिर इसमें आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन एक वीडियो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप इसमें डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, एक ज्योमेट्री ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का लिंक उसमें है, आप उसको जाके देखिएगा, आपका पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का ज्योमेट्री क्या होता है। तो देखिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या है? सच टाइप ऑफ कटिंग टूल विच हैव ओनली वन कटिंग एजेस and the major part of the cutting edge is called side cutting edge and the minor part is called end cutting edge. So now you can see this is your single point cutting tool. It will be like this. It is the nose, right? It will be like this. This is your single point cutting tool. Okay, this is your shank, making it as a shank face. Okay, this is your relief face. This is your relief face. Okay, this is a rough diagram I am making. Okay, only for your understanding. Like this. This is a single point cutting tool. Okay, so now see, this is your shank. This is your relief. This is your relief face. What? Relief face. Geometry of a single point cutting tool I am discussing. This is your rake face. Why we provide the rake face? So that better chip flow, right? The chip flow can be better. That's why whenever the chip flow will be better, more will be the tool life. तो जितना आसानी से चिप फ्लो करेगा उतना ज्यादा टूल लाइफ होगा। तो यहाँ पे देखो, तो इसको ये वाला जो तुम्हारा ये है कटिंग एज, ये क्या है तुम्हारा कटिंग एज। तो जो लार्जर पार्ट है कटिंग एज का, उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं उसको? ये है हमारा साइड कटिंग एज, इसको बोलते हैं अपन साइड कटिंग एज, साइड कटिंग एज। ओके, और जो स्मॉलर पार्ट है इसको बोलते हैं एंड कटिंग एज। और ये है हमारा नोज ऑफ द कटिंग टूल। क्या है? नोज ऑफ द कटिंग टूल। तो अगर तुम इसका फ्रंट व्यू देखोगे, मुझे सिर्फ फ्रंट व्यू से काम है, मैं बाकी व्यू आपको नहीं दिखाऊंगा। मैं एक वीडियो आप डालूंगा ज्योमेट्री ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पे, उस पे आप देख लेना। तो एक बात बताओ, तुम जब टूल देखते होगे कहीं पे, तो ये क्या 3D ज्योमेट्री है ना दोस्त, ये एक 3D ज्योमेट्री है। लेकिन तुम कहीं कहीं पे देखोगे, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, तुम्हें वो इस तरह का फोटो दिखा देंगे। देखो, तुम्हें वो इस तरह का फोटो दिखाएंगे। देखो यहाँ पे इस तरह का फोटो। अब तुम सोचते होगे कि ये सर ये टूल कैसा है, फिर ये वाला टूल हमारा कैसा है, ये टूल कैसे आ गया? तुम्हें प्रॉब्लम होता होगा, ये इस तरह बना हुआ है, देखो ऐसे ये बना हुआ है ना, तो ये टूल ऐसे कैसे आ गया? ये टर्निंग ऑपरेशन है, ठीक है। तो टूल तो एक्चुअली होता है इस तरह का 3D,
तो ये 2D में कैसे बदल गया? अगर 2D फोटो दिया हुआ है इसका मतलब ये किसी न किसी डायरेक्शन में इसका एक व्यू है, या तो फ्रंट व्यू होगा या टॉप व्यू होगा या साइड व्यू होगा। तो अब देखो यहां से इस टूल से अपन कैसे आएंगे, यहां पे ये टूल हमें कैसे मिलेगा, यही कैच है, ये समझ के बस पिक्चर क्लियर। देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि ये टूल की तरफ हमें कैसे आना है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा दे रहा हूं, ठीक है। ओके देखो, तो इसका अगर तुम डिफरेंट डिफरेंट व्यू में देखोगे, इसको तुम डिफरेंट डिफरेंट व्यू में अगर देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि सर ये जो है हमारा, ये एक व्यू अगर लेते हैं, ये वाला हमारा टॉप व्यू, ये टॉप व्यू होगा, बोलोगे यस सर होगा, वेरी गुड। ये वाला होगा सर फ्रंट व्यू, होगा फ्रंट व्यू। हर व्यू में टूल दिखेगा। ये वाला होगा हमारा क्या, साइड व्यू। तो चलो हमें काम है सिर्फ टॉप व्यू से, तो टॉप व्यू में इसको देखो और मुझे बताओ क्या दिखता है। टॉप व्यू में अगर तुम देखोगे तो तुम्हें ये दिखेगा, बस कटिंग एजेस दिखेगा, ये दोनों लाइन क्या करेगा, कोइंसाइड कर जाएगा, ये दोनों लाइन, दीज टू लाइन कोइंसाइड्स, और ये दिखेगा, मतलब शैंक दिखेगा, रेक दिखेगा, रेक फेस दिखेगा, शैंक फेस दिखेगा, दिखेगा ना। तो चलो बनाते हैं, तुम बताना सही मैं बना रहा हूं कि नहीं। तो मैं अगर बना दिया टॉप व्यू में ऐसा, लाइक दिस, ओके, ये ऐसा यहाँ पे कोइंसाइड कर गया, ये इस तरह का एक लाइन, ये यहाँ इस तरह का एक लाइन। बोलो दोस्त, अगर मैं ऐसा बना रहा हूं तो तुम्हें दर्द होगा क्या? बोलो, क्या ये ऐसा दिखेगा? बताओ। तुम बोलोगे यस सर ये दिखेगा, ये एक लाइन दिखेगा, एक लाइन ये दिखेगा, और ये दोनों हमारा ये ऐसा दिख जाएगा। बोलो ये फेस, ये लाइन यहाँ दिखेगा, ये लाइन यहाँ दिखेगा, ये, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, यही दिखेगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली यही दिखेगा। चलो बढ़िया बढ़िया, देखो मजा आ रहा है, लाइक करो दोस्त, जीआई क्लासेस को लाइक करो, जितना ज्यादा लाइक करोगे मुझे उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं मुझे और वीडियो बनाना है, और बढ़िया वीडियो बनाना है, ठीक है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जितने दोस्तों में शेयर कर सकते हो करो, और बस फेमस करो इस चैनल को यार दोस्त, फेमस करो, ठीक है। और मैं तुम्हें सिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे बनाना है गेट का, ठीक है, टेंशन नहीं। ये किताब खरीद लेना दोस्त, ये किताब खरीद लेना, ये बाइबल है, इसके बिना कुछ नहीं, मैन्युफैक्चरिंग साइंस की बहुत अच्छी किताब है, ठीक है, थर्ड ईयर वाले पार्टिकुलरली खरीद लेना। चलो आगे देखते हैं, ये हमारा आ गया, ये हमारा दोस्त आ गया, ये आ गया, ये आ गया टॉप व्यू। तो टॉप व्यू बना दिया सर, सर टॉप व्यू बना दिया, सब व्यू मैं दिखा सकता हूं लेकिन जो काम है दोस्त बस वही दिखाऊंगा, ठीक है। टॉप व्यू, टॉप व्यू जैसे ही आ गया तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे अब आगे बढ़ोगे तो सर ये जो एंगल था आपका ये हो गया शैंक। मैं बोलूंगा बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल बेटा, ये शैंक है, मतलब 2D में ये 2D शैंक हो गया, ये हो गया रेक, बिल्कुल ये रेक है सर। और बताओ, बोलोगे सर ये छोटा वाला है ना, ये छोटा वाला, ये एंड कटिंग एज है, ये साइड कटिंग एज है, बिल्कुल लिख दो, लिख दो दोस्त, ये वाला है, ये वाला है एंड कटिंग एज, ये है एंड कटिंग एज, करेक्ट। चलो बढ़िया, ये वाला क्या है, ये बोल दोगे सर साइड कटिंग एज है, चलो लिख दो साइड कटिंग एज, बहुत बढ़िया, साइड कटिंग एज। ये क्या है सर, नोज है, चलो नोज, तो नोज का अपना एक रेडियस भी होगा। तो अब जब देखा गया इसको, साइड कटिंग एज, एंड कटिंग एज, ये हमें टॉप व्यू में तीन चीज दिख रहा है, तो इसको अगर तुम दोबारा बनाओगे, देखो मेरे दोस्त ये तीनों बन गया। अब यहाँ पे एंगल आ जाता है कुछ, कौन सा एंगल, इसको फिर से बना दो, मान लो तुम यहाँ से स्टार्ट करो, ऐसा गया, ठीक है, और ये ऐसा कर्वेचर है हल्का, ये यहाँ पे इस तरह चला गया, चला गया, तो ये अब तुम्हारा ये इस तरह का बन गया, ऐसा, ये ऐसा आ गया। बोलो सेम है ना, सेम है बिल्कुल। तो ये यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे तुम्हें तुम्हें एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना है, इसको प्रोजेक्ट कर दो आगे, इसको आगे प्रोजेक्ट कर दो, ठीक है, सॉरी सॉरी, इसको यहाँ पे आगे प्रोजेक्ट कर दो, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनाएगा, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनाएगा, ये वर्टिकल के साथ एक एंगल बनाएगा, और इसका जो कर्वेचर है दोस्त, ये जो इसका कर्वेचर है, क्योंकि ये है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा इस नोज का,
उसको बोलते हैं नोज रेडियस। क्यों नोज रेडियस प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम करने के लिए। अगर सर ये कोनिकल होगा तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो कम ही लोड पे क्या होगा? टूट जाएगा। जब तुम्हारा पेंसिल का निब होता, जब बहुत शार्प कर देते थे तो क्या होता था? तुरंत टूट जाता था, हल्का सा लोड पड़ता था और टूट जाता था। समझ रहे हो? तो ये तुम्हारा आ गया आर। तो अब सबको नाम दे दो दोस्त जल्दी जल्दी। ये आ गया सर आर, नोज रेडियस। तो एंड कटिंग एज, एंड कटिंग एज इसके साथ जो एंगल बना रहा है इसे बोलते हैं सीई, एंड कटिंग एज एंगल। कोई कंफ्यूजन नहीं। देखो बहुत सारे लोग, ये हमारा एंड कटिंग एज है, ये हमारा एंड कटिंग एज है। तो एंड कटिंग एज इस वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहा है एंड कटिंग एज एंगल। साइड कटिंग एज जो इस हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है साइड कटिंग एज एंगल, सी एस। तुम बोलोगे सर आप सी एस सी यू क्यों अज्यूम कर रहे हैं? कुछ ऑथर साई अज्यूम करते हैं, कुछ साई बोलते हैं, साई एस बोलते हैं, कुछ साई, अरे कुछ भी बोलते हैं। तुम तो सिंपल याद रखो, कंफ्यूजन को मारो गोली। ठीक है? सीई एंड कटिंग एज, सी मतलब कटिंग, ई मतलब एंड, एंड कटिंग एज, साइड कटिंग एज, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, नोज रेडियस। बस कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम सिंपल। तो यहां पे हमने सीखा क्या सर? सीई हमें आ गया एंड कटिंग एज एंगल, एंड कटिंग एज एंगल। बोलो एंड कटिंग एज एंगल आ गया। चलो सी एस आ गया तुम्हारा साइड कटिंग एज एंगल दोस्त, साइड कटिंग एज एंगल। और आर आ गया तुम्हारा क्या दोस्त? नोज रेडियस। आर आ गया तुम्हारा नोज रेडियस। नोज रेडियस जितना ज्यादा टूल लाइफ उतना ज्यादा, याद रखना, स्ट्रेस कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। बहुत ज्यादा मत खुश होकर बढ़ा देना, फिर चैटरिंग साउंड आने लगता है। बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ाते हैं। चलो तो ये हो गया हमारा नोज। ठीक है, ओके। एंड कटिंग एज एंगल ये हो गया नोज, ये साइड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज, सॉरी ये हमारा क्या था? साइड कटिंग एज। ओके, तो ये है हमारा साइड कटिंग एज, ये है हमारा एंड कटिंग एज, ये है हमारा नोज। पिक्चर क्लियर यहां तक? तो ये ऐसा कर, सर ये क्यों बता रहे हैं? बेटा देखो क्यों बता रहा हूं, ये बन गया तुम्हारा। अब एक काम करो मेरे भाई, तो सीई सी एस बहुत सिंपल जुगाड़ है, सीई और सी एस, साइड कटिंग एज एंड कटिंग। अब देखो, अब एक बंदे ने क्या किया बोला कि ये तो टॉप व्यू में दिख रहा है, बोला कि सर इसको अगर अपन उठाते हैं और उठा के इसका एक डुप्लीकेट मान लो लिए यहां से यहां पे लाएं इसको। मैं बोला ठीक है बेटा कोई बात नहीं, ले आओ यहाँ पे इसको एक उठा के। तो वो बोला कि सर इसका मान लीजिए एक उठा के इसको यहाँ पे लाएं, और इसको अगर सर रोटेट कर दे, देखो इसको अगर 90 डिग्री रोटेट, देखो मैं रोटेट कर रहा हूँ, देखो यार इसको ऐसे, इसको अपन अगर ऐसे रोटेट कर दे, फील करना दोस्त, कोई नहीं बताएगा ऐसे, कोई नहीं बताएगा। इसको ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे था ना हॉरिजॉन्टल में, इसको ऐसे अपन रोटेट कर दिया लाइक दिस। देखो देखो इसको रोटेट कर दिए, जब रोटेट कर दिए दोस्त तो ये बन गया ऐसा, बन गया ऐसा। तो ये जब ऐसा बन गया तो ये हमारे पास क्या आ गया? बोलो, ये जब ऐसा बन गया तो अब ये बन गया ऐसा वर्टिकल में, ऐसा ही तुम्हें दिखेगा टर्निंग होते हुए, जो टूल होगा तुम्हें इसी तरह दिखेगा। तो चलो अब मैं इसको ऐसा कर दिया, 90 डिग्री रोटेट कर दिया, किसको? टॉप व्यू को 90 डिग्री रोटेट कर दिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा असम्पशन ले रहा हूं, क्या? थोड़ा सा असम्पशन ये ले रहा हूं कि इस टूल में इस लाइन का हमें कोई काम नहीं है, इस लाइन को ओमिट कर रहा हूं, ठीक है? और मैं शार्प कॉर्नर मान रहा हूं, मतलब नोज रेडियस को भी मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं। तो शार्प कॉर्नर अगर कंसीडर कर रहा हूं तो ये हमारा इस तरह का आएगा दोस्त। देखो ये वाला लंबा वाला एज आएगा, बोलो आएगा? चलो बढ़िया। और ये वाला ये आएगा, ऐसा आएगा, आ गया? तो ये वर्टिकल लाइन आएगा इस तरह, ये वर्टिकल लाइन आ जाएगा ऐसा, और ये इस तरह का आ जाएगा ऐसा। तो इसी को न्यूमेरिकल बनाने में यूज करते हैं। तो ये बन गया एक कटिंग टूल, ये कटिंग टूल का टॉप व्यू है। अब यहाँ पे तुम इसको अगर एक, अब यहाँ पे कुछ ऑथर क्या करते हैं, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, और एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे, देखो ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब ये वाला इसको प्रोजेक्ट कर दिया आगे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अच्छा एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे, यही था ना? तो जो छोटा वाला है कुछ नहीं करना है, छोटा वाला जो है, छोटा वाला है वो क्या है? एंड कटिंग एज। तो एंड कटिंग एज के ये एंगल क्या होगा? सीई। वेरी गुड।
तो ये एंगल क्या होगा, सी एस। साइड कटिंग एज है ना, ये साइड कटिंग एज है, ये इसके साथ क्या बनाएगा, अगर इसको तुम वर्टिकल कर दोगे तो ये वर्टिकल के साथ बनाएगा, और यहाँ पे जो था ये ऐसा था तो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा था ना सी एस। इसको ऐसे 90 डिग्री घुमा दिए, दिखाए अभी घुमा के दिखाए ना, तो ये हमारा ऐसा आ गया। पिक्चर क्लियर। तो अब तुम बोलोगे सर ये वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस सी एस होगा क्या, बिल्कुल होगा। ये वाला एंगल 90 माइनस सी एस होगा, और इसी एंगल को नाम दिया गया प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, राइट। मींस दो साइड कटिंग, जो तुम्हारा साइड कटिंग एज है वो जो हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पे एंगल बना रहा है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल। तो यहाँ पे ये जो एंगल है इसे बोलते हैं लैम्डा, याद रखना। तो तुम बोलोगे सर किसी भी टूल में लैम्डा प्लस सी एस 90 डिग्री होता है क्या, बिल्कुल 90 डिग्री होता है। लैम्डा प्लस सी एस बिल्कुल 90 डिग्री होता है, लैम्डा प्लस सी एस बिल्कुल 90 डिग्री होता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये लैम्डा क्या था सर, तो लैम्डा है हमारा प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल। अरे कोई प्रॉब्लम है क्या, प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, इसकी वैल्यू क्या होती है सर, इसकी वैल्यू होती है 90 माइनस सी एस, 90 माइनस सी एस साइड कटिंग एज एंगल। पिक्चर क्लियर। तो ये हो गया, मतलब ये बन गया सर, ये तो समझ गया ये। तो इसी कटिंग टूल को क्या बोलते हैं, इसी कटिंग टूल को क्या बोलते हैं थोड़ी देर बाद बताएंगे। ये कटिंग टूल अगर मान लो एक बंदा क्या करता है, इस पॉइंट को उठाए, सीजर देखियो, चाकू देखियो, उसमें एक कटिंग एज रहता है, बाकी इस तरह रहता है, ऐसा कटिंग एज नहीं रहता है उसमें, देखिए होगे तो ये वर्टिकल रहता है, देखियो इस तरह ये वर्टिकल रहता है ना। सीजर को देखना, जाके देखना, चाकू को देखना, नाइफ को। तो वेन एवर यू सी अ नाइफ यू कैन एनालाइज दैट ये ऐसा है, मतलब ये वाला पॉइंट को अगर मैं यहां पहुंचा दूं, इस वाले पॉइंट को अगर मैं यहां पहुंचा दूं, तो यहां पे अगर पहुंचा दूंगा इस पॉइंट को, इस प्लेन पे, तो सी एस क्या हो जाएगा, जीरो, सी एस जीरो हो जाएगा, लैम्डा क्या हो जाएगा 90। मतलब ये वाला एज अगर इस वर्टिकल से कोइंसाइड करेगा तो लैम्डा हो जाएगा 90 डिग्री, लैम्डा 90, 90 मींस ऑर्थो, 90 मींस ऑर्थो। तो सच टाइप ऑफ कटिंग टूल whose principal cutting edge angle is 90 degree and side cutting edge angle is 0 degree, that cutting tool is called orthogonal cutting tool, that cutting tool is called orthogonal cutting tool। तो अगर तुम यहाँ पे बनाओगे इसको, मैं अगर ऐसा बना दूं, मैं अगर ऐसा बना दूं, देखो यहाँ पे देखो आराम से, छोटा थोड़ा छोटा बना रहा हूं, देखो ये एक वर्टिकल बनेगा ऐसा, अच्छे से देखना, ये एक वर्टिकल बनेगा ऐसा, और ये एक इस तरह बनेगा ऐसा, बोलो। तो ये इस तरह का बन गया, मतलब क्यों बन गया, कैसे बना ये ऐसा, इसको यहाँ पे मिला दिए, इसको उठा के यहाँ पे रख दिए, यहाँ रख दिए, तो अब ये ऐसे मिलेगा ना, बोलो दोस्त। अरे समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ। ये इसको सी एस को जीरो करना है, सी एस को जीरो करना है, मतलब ये वाला लाइन जो है साइड कटिंग एज जो लाइन है ये इस पे चला जाए, तो चला जाएगा तो एंड कटिंग एज ये हो जाएगा। तो अब ये हो गया, ये वाला हो गया साइड कटिंग एज, ये वाला हो गया एंड कटिंग एज। तो साइड कटिंग एज एंगल कॉन्साइड कर गया तो ये हो गया जीरो। तो देखो, तो ये तुम्हारा है साइड कटिंग एज, याद रखना, साइड कटिंग एज। पिक्चर क्लियर। ये वाला है तुम्हारा एंड कटिंग एज, ठीक है। अच्छा, वर्टिकल ड्रॉ करोगे तो वर्टिकल तो यहीं से क्रॉस कर रहा है ना, इसी जगह से क्रॉस कर रहा है, और ये इसका ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो अगर सर यहाँ पे आएंगे, इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, इसको अगर थोड़ा बड़ा करके देखते हैं सर, तो क्या दिख रहा है सर, सर दिख ये रहा है कि ये वर्टिकल से कोइंसाइड होने के बाद, तो बेटा अब जहां भी ऐसा टूल दिखे, ये ऐसा और ये ऐसा और ये ऐसा, मतलब सर ये वाला है हमारा, ये वाला है हमारा सीई, और ये है हमारा लैम्डा, और सीई लैम्डा 90 डिग्री, मींस यहाँ पे सर लैम्डा हो गया 90 डिग्री और सी एस हो गया 0 डिग्री। तो लैम्डा सी एस, सीई नॉट इक्वल टू 0, मेन इसी का काम है हमें, लैम्डा और सी एस का। तो such type of cutting tool whose principal cutting edge angle is 90 degree, side cutting edge angle is 0 degree is called orthogonal cutting tool, ऑर्थो। तो जब भी कहीं पे देखोगे तो समझ जाना, ऑर्थोगोनल कटिंग टूल, ऑर्थोगोनल कटिंग टूल। पिक्चर क्लियर।
पिक्चर क्लियर मेरे दोस्त, पिक्चर क्लियर, मजा आया लाइक करो, मजा आया लाइक करो। ऑर्थोगोनल कटिंग टूल। अच्छा, ऑब्लिक कटिंग टूल क्या है? ये वाला ऑब्लिक मींस लैम्डा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, लैम्डा लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ पे लैम्डा जो है हमारा वो लेस देन 90 डिग्री है। तो यही जो फोटो था, यही जो फोटो है, यही जो डायग्राम है, दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स यू ऑब्लिक कटिंग टूल। तो अगर फोटो बनाओगे यहाँ पे तो देखोगे तो ये तुम्हारा ऑब्लिक कटिंग टूल ये बन जाएगा। इसको ऐसे रखना है इंक्लाइन, और ये वाला ऐसे, ठीक है। तो ये अब इस तरह आएगा, ये अब इस तरह आएगा। बोलो बोलो, समझ में आ रहा है? तो ये आ गया ऑर्थोगोनल, ये आ गया ऑब्लिक। मतलब सर ये कि ये वाला अगर इसको यहाँ पे ऐसे बढ़ा दें, ये ऐसे अगर जाएगा तो सर ये वाला हो गया सी एस और ये वाला हो गया लैम्डा, और यहाँ पे सी एस नॉट इक्वल टू 0 होता है, लैम्डा नॉट इक्वल टू 90 होता है, लेकिन लैम्डा प्लस सी एस क्या होता है? ये 90 डिग्री होता है। लैम्डा प्लस सी एस क्या होता है? ये 90 डिग्री होता है। कोई प्रॉब्लम इसमें दोस्त? किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो इस वाला जहां पे भी ऐसा फोटो देखोगे इसको बोलेंगे ऑब्लिक कटिंग टूल, ऑब्लिक कटिंग टूल। पिक्चर क्लियर? अब अगर टर्निंग क्या, टर्निंग एक ऐसा, टर्निंग इज अ मशीनिंग प्रोसेस इन विच वी रिड्यूस द डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वर्कपीस, इन विच वी रिड्यूस द डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वर्कपीस। तो मैं ये डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लीजिए। अगर आपको नहीं मालूम है आप यूट्यूब पे जाइए, 1 लाख वीडियो उसमें टर्निंग का डेफिनेशन लोग बता रहा है, ठीक है। लेकिन ये कैसे आया, ये आज से आपको याद रहना चाहिए कि ये जब भी देखेंगे मतलब ऑब्लिक कटिंग टूल, और ये है हमारा ऑर्थोगोनल कटिंग टूल। तो अब अगर ये टूल, इस टूल से हम डायमीटर को रिड्यूस करेंगे तो उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल टर्निंग। अगर इस टूल से डायमीटर को रिड्यूस करेंगे उसको बोलते हैं ऑब्लिक टर्निंग। यही तो सिंपल सी बात है। तो चलो पहले देखते हैं ऑर्थोगोनल टर्निंग। क्या देखते हैं? ऑर्थोगोनल टर्निंग। तो ऑर्थोगोनल टर्निंग के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्थोगोनल टर्निंग। तो ऑर्थोगोनल टर्निंग से अच्छा है कि पहले ऑब्लिक पढ़ते हैं क्योंकि ज्यादा पिक्चर क्लियर होगा। ऑब्लिक टर्निंग ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोगोनल अपने आप समझ में आ जाएगा। इसका अगर रिजल्ट समझ में आ गया, लैम्डा क्या पुट करना है? 90, लैम्डा 90 पुट करना है, पिक्चर खत्म। ऑब्लिक टर्निंग देखो, ऑब्लिक टर्निंग डायमीटर रिड्यूस करना है। तो ऑब्लिक टर्निंग का अगर मैं तुम्हें फोटो दिखा दूं, 1 मिनट रुक जाओ, ऑब्लिक टर्निंग का फोटो मेरे पास है, कोई बात नहीं। ऑब्लिक टर्निंग का अगर तुम देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा। देखो ये एक कटिंग टूल है तुम्हारा, गौर से देखना, अच्छे से देखना, समझ से। ये एक कटिंग टूल है तुम्हारा, ये एक कटिंग टूल है, ओके। चलो लाइक दिस, और ये हमारा एक शाफ्ट, ये डायमीटर है, ठीक है। चलो दूसरा क्या है हमारा? ये है ये इस तरह आएगा, ये ऑब्लिक टर्निंग। पिक्चर क्लियर? तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे ऑब्लिक, मतलब ये ऑब्लिक करने का मतलब यहाँ पे टेपर ज्योमेट्री बनेगा, टेपर ज्योमेट्री हमारा बनेगा। तो ये टेपर ज्योमेट्री है, ये आउटर डायमीटर है, ये लार्जर डायमीटर, ये स्मॉलर डायमीटर। ये ऐसा कैसे बनेगा? इसका मतलब सर आप जरूर ये वाला कटिंग टूल का इस्तेमाल करोगे। यस बिल्कुल, मैं ये वाले कटिंग टूल का इस्तेमाल करूंगा। तो इस वाले कटिंग टूल को फिट करो यहाँ पे। इस वाले कटिंग टूल को अगर फिट करेंगे तो ये ऐसा आएगा। एक मान लो मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ समझने के लिए, कि थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आए, थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आए, थोड़ा बड़ा। चलो बढ़िया, और ये वाला हमारा ये, ओके फाइन। तो ये एक टर्निंग, देखो इसको अच्छे से समझना है तो अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका डेरिवेशन नहीं समझ में आता है बहुत लोग को। देखो तो ये एक ऑब्लिक कटिंग टूल है ऐसा टूल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तुम मुझे ये बताओ सबसे पहले कि तुम अब इसको प्रोजेक्ट करोगे अगर, तो ये तुम्हारा एक वर्टिकल लाइन जाएगा ऐसे,
ये तुम्हारा एक वर्टिकल लाइन जाएगा इस तरह, बोलो, तो ये तुम्हारा एक वर्टिकल लाइन इस तरह, ये वर्टिकल हो गया और ये हॉरिजॉन्टल जाएगा। तो जैसे ही ये मेजर कटिंग एज है, मेजर कटिंग एज है, तो ये वाला एंगल देखो, अब सिर्फ लैम्डा से हमें काम है, सारा काम लैम्डा से रखना है, तो ये वाला हो जाएगा लैम्डा। तो कौन सा कलर सही है लैम्डा के लिए? ये वाला व्हाइट ही, चलो व्हाइट सही रखते हैं, ये हो गया लैम्डा। ठीक है, तो ये तुम्हारा अगर लैम्डा है, आराम से सुनो, अब ये बताओ जितना टूल अंदर पेनिट्रेट रहता है, ये टूल का इनिशियल सरफेस है, ये फाइनल सरफेस है, तो पेनिट्रेशन जितना होता है टूल के अंदर उसे क्या बोलते हैं? डेप्थ ऑफ कट। जितना पेनिट्रेशन होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्त? डेप्थ ऑफ कट। तो ये है हमारा डेप्थ ऑफ कट। पिक्चर क्लियर? क्यों डेप्थ ऑफ कट है? कि टूल इतना ही पेनिट्रेट किया हुआ है अंदर में, है ना। तो ये वाला जो तुम्हारा पॉइंट है, तुम इसको अगर आगे बढ़ाओगे दोस्त, इसको अगर तुम आगे बढ़ाओगे, प्रोजेक्ट करोगे, तो ये तुम्हारा आएगा, ये वाला तुम्हारा आएगा स्मॉल डी डेप्थ ऑफ कट। पिक्चर क्लियर? तो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए यहां पे, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए यहां पे ऐसे, मुझे बताना, तो ये वाला तुम्हारा जो है ये पार्ट, ये भी डेप्थ ऑफ कट होगा। तो ये अगर लैम्डा है, इस ट्रायंगल में देखो यहाँ पे, सॉरी, ये अगर तुम्हारा लैम्डा है, ये लैम्डा है, तो ये भी एंगल क्या होगा? लैम्डा होगा दोस्त, होगा ना लैम्डा। ज्योमेट्री पढ़े हो ना, ये दो पैरेलल लाइन है, इसको ये कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये भी लैम्डा होगा, बिल्कुल होगा सर लैम्डा, कोई डाउट ही नहीं है, लैम्डा। तो ये डेप्थ ऑफ कट है। और ये जो पार्ट होता है, ये जितना पार्ट कटिंग एज का, जितना पार्ट कटिंग एज का वर्कपीस के कांटेक्ट में होता है उसको बोलते हैं विड्थ ऑफ कट। जितना पार्ट दर्द हो रहा होगा, कैसे मान ले विड्थ ऑफ कट? देखो देखो देखो, बता रहा हूं, देखो मैं पढ़ाया हूं सब, देखो यहाँ पे, देखो ये तुम्हारा ये वाला है विड्थ ऑफ कट, ये है, ये विड्थ है ना बी, ये बी है, और ये पूरा का पूरा कटिंग एज है। तो कटिंग एज तो पूरा है बड़ा, लेकिन इसमें कांटेक्ट में कितना पार्ट है? ये बी। तो जितना पार्ट कांटेक्ट में होगा, कि ये टोटल कटिंग एज है, जितना पार्ट कांटेक्ट में होता है उसी को बोलते हैं विड्थ ऑफ कट। पिक्चर क्लियर? तो ये बी है, तो ये हो गया विड्थ ऑफ कट। तो विड्थ ऑफ कट को बी से डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो विड्थ हमें चाहिए, आप इससे पहले वाला वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, ऑर्थोगोनल मशीनिंग, उसमें आपको दिखेगा विड्थ ऑफ कट क्या, बहुत ही अच्छे से समझाया हूं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया हूं, देखो यहाँ पे। तो ये वाला सर, चलो ये भी समझ में आ गया सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोल दिए तो समझ गए। ये वाला भी समझ में आ गया कि सर ये जो है हमारा, जो कांटेक्ट में है, ये है विड्थ ऑफ कट। विड्थ ऑफ कट, कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं। सर एक बात बताइए, अब इसको अगर एक ट्रायंगल मान ले, एक ट्रायंगल मान ले, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान ले रहे हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, मान लिए। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, अच्छे से समझना, इन ट्रायंगल ए बी सी, बोलो इन ट्रायंगल ए बी सी, बताओ बताओ बेटा, साइन लैम्डा इज इक्वल्स टू व्हाट? साइन लैम्डा इज इक्वल्स टू व्हाट? साइन लैम्डा ए बी अपॉन बी सी। ए बी क्या है? डेप्थ ऑफ कट, बी क्या है? विड्थ ऑफ कट। तो डेप्थ ऑफ कट बाई विड्थ ऑफ कट। ओके, तो हमें पता चल गया कि बी जो होगा विड्थ ऑफ कट होता है वो डी बाई साइन लैम्डा। विड्थ ऑफ कट क्या होगा? डी बाई साइन लैम्डा। तो विड्थ ऑफ कट पता चल गया डी बाई साइन लैम्डा। एक फॉर्मूला ये पता चल गया, विड्थ ऑफ कट डी बाई साइन लैम्डा। अच्छा, तो विड्थ ऑफ कट इज इक्वल्स टू डी बाई साइन लैम्डा को क्या बोल सकते हो? कॉस सी एस। अब कितना को समझ में नहीं आ रहा होगा साइन लैम्डा कॉस सी एस कैसे हो गया, मैं बताऊंगा भी नहीं कैसे हो गया। ठीक है, तो b इज इक्वल टू डी बाई कॉस सी एस, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया हमारे पास। ठीक है, बिकॉज लैम्डा क्या है? 90 माइनस सी एस। लैम्डा क्या है? 90 माइनस सी एस, साइन 90 माइनस सी एस, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो ये दो फॉर्मूला, b इज इक्वल टू डी बाई साइन लैम्डा एंड b इज इक्वल टू डी बाई कॉस सी एस, बेटा याद रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। चलो पिक्चर क्लियर? तो दैट इज द रिलेशन बिटवीन विड्थ ऑफ कट एंड डेप्थ ऑफ कट इन एन ऑर्थोगोनल टर्निंग। याद रखना इसको, रिलेशन बिटवीन
width of cut, क्वेश्चन आएगा गेट में इस पे, width of cut comma b and depth of cut small d in oblique turning operation. एकदम जैसे नाम याद है ना, छींकते हो ना, उस तरह ये फॉर्मूला निकलना चाहिए, छींकोगे तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। b इज इक्वल टू डी बाई साइन लैम्डा, एकदम याद रहना चाहिए, ठीक है। जैसे मोबाइल नंबर याद रखते हो ना, उस तरह ये नंबर भी याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमें फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन फीड एंड अनकट चिप थिकनेस। तो एक बात बताओ, एक चीज और तुम्हें मैं बता रहा हूं यहाँ पे, अगर तुम इसको अब आगे बढ़ाओगे, यहाँ पे ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को देखो यहाँ पे, मतलब इसको अगर नाम दे दे अपन ए बी सी, इसको नाम दे दे डी, ए बी डी सी, इस तरह, ठीक है। तो सर अगर ये हमारा विड्थ ऑफ कट है, तो विड्थ ऑफ कट के जो परपेंडिकुलर डायमेंशन होता है क्या होता है? थिकनेस, लेंथ, विड्थ और थिकनेस, यही होता है ना। तो विड्थ ऑफ कट अगर ये है, तो इसके परपेंडिकुलर अगर इस पे ड्रॉ करोगे तो यही क्या रिप्रेजेंट करेगा? थिकनेस करेगा। किसका? अनकट चिप। क्यों? क्योंकि ये अभी कटा नहीं है, ये शहीद होने वाला है। ये पार्ट कट चुका है, ये सब इतना कट चुका है, ये अभी कटा नहीं है, ये इतना पार्ट अभी कटा नहीं है, ये कटने वाला है। कब कटेगा? जब हमारा टूल यहां से यहां पहुंच जाएगा। देखो, जब टूल हमारा यहां पहुंच जाएगा, टूल जैसे ही हमारा यहां पहुंच जाएगा तो ये पार्ट भी शहीद हो जाएगा। मतलब ये अभी शहीद नहीं हुआ है, मतलब इसको बोलेंगे अनकट चिप, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद कट के चिप बन जाएगा। तो ये अनकट चिप है। तो ये अगर अनकट चिप का विड्थ है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो थिकनेस होगा। और अनकट चिप थिकनेस को मैं किससे डिनोट किया हूं? लेक्चर नंबर 1 ऑर्थोगोनल मशीनिंग, स्मॉल टी से। तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ अगर करेंगे सर, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ अगर करेंगे सर, परपेंडिकुलर ड्रॉ अगर करोगे तो ये जो डायमेंशन हमें मिलेगा, तो ये होगा सर स्मॉल टी, अनकट चिप थिकनेस। मैं बोलूंगा बिल्कुल कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अनकट चिप थिकनेस होगा। तो चलो सर अब इसको आगे बढ़ते हैं। तो सर अगर मान लीजिए थोड़ी देर बाद, ये तो अनकट चिप थिकनेस होगा, समझ गए। तो इसको अगर आप ए बी है, इसको अगर आप नाम दे दो ए बी डी, इसको नाम दे दो ई, ठीक है, इसको नाम दे दो ई, ए बी डी सी ई। तो अब इसमें अगर आगे बढ़े सर थोड़ा सा, थोड़ी देर बाद एक रिवॉल्यूशन जैसे ही कंप्लीट करेगा, ये आरपीएम है ना, इसमें ये घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। तो आफ्टर वन रिवॉल्यूशन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टूल इज कॉल्ड फीड, राइट। So whenever one revolution is completed, this uncut chip will converted into chip, isn't it? So now what happened? The new position of the tool will be like this, right? So whenever you see the new position of the tool, it will be suppose like this. I am showing you, but I will delete it, okay? For your understanding only I am showing you. This will be the new position parallel to this. This will be the new position of the tool, right? And like this, okay? This will be the new position of the tool and it will be coming like this. Tell me, this is the new position of the tool. So how you will get this position? That is called feed. That is the displacement. That is the displacement revolution per mm, displacement per revolution. So this is actually called feed. This is actually called, the displacement of the tool is called feed, mm. Feed, a small f, right? Right, a small f, feed. So now sir, which means that is the when the tool reaches from point B to D. So that is we called fmm. If the feed is fmm per revolution, means in one revolution the displacement is fmm, that is the feed, which means the distance traveled from here to here to remove the uncut chip, that is called feed here. So we will see, this is your feed, nothing but feed, okay? To understand this, this is your feed. Very important discussion, very important, feed. This is your feed, right? So now to make you understand, I draw this diagram. To make you understand, right? This is the new position of the feed and the displacement will call feed. So this is your F. So now if you see the triangle, it will be like this, right? So in this triangle,
in this triangle, this is your feed. Now I am eliminating this. See, now feed I have written. Now I am showing you one thing. See, because there is a confusion, otherwise you will get confused. So now I am writing. Now I can write, you don't have any problem. Sir, yes, this will be your feed. That is the displacement here. Right, mm per revolution. And this position is nothing but F. This position is nothing but F, small f. बोलो बोलो बच्चे, ये क्या आएगा? स्मॉल एफ आएगा, ये आ गया फीड. तो अब इसमें अगर इस ट्रायंगल में तुम देखोगे, ये डेप्थ ऑफ कट है. इन ट्रायंगल टेल मी, इन ट्रायंगल बीडीई, इन ट्रायंगल बीडीई, इन ट्रायंगल बीडीई, इन ट्रायंगल बीडीई, टेल मी, in triangle BDE, tell me sin lambda is equals to what? Sin lambda, sir, this is lambda, then this is also lambda. Yeah, right, this is also lambda, this is also lambda. See, this is also lambda. So here this BD is feed, this BD is nothing but feed, right? This is feed, right? So here this is when feed in this triangle I am talking about, in this triangle. So this is your feed, this is your T. So sin lambda is equal to T by F. Sin lambda is equal to T by F, right? Sin lambda is equals to, sorry, very beautiful discussion, T by F. T by F, okay? So therefore, T is equals to F sin lambda. T is equals to F sin lambda. T is equals to F sin lambda. बोलो बोलो, मजा आया डिस्कशन देख के. T is equals to F sin lambda. Is it okay, everyone? How the relation between the uncut chip thickness and feed in orthogonal turning operation, isn't it? Now sir, how can we memorize it? Very simple, very simple. I am showing you this. See, very simple it is. What you have to do? Nothing. It will be like this. Just make a triangle. Just make a rectangle like this. Just make it like this. Okay. So now here it will be like this, and now draw it a diagonal, right? And draw a perpendicular here like this. Very simple it is now. Now just denote the points. This is the penetration. This is your depth of cut. This is your D, right? This is your D, and this is the displacement is F, and this is your T, and this is your B. The inclined is B, width of cut. This is your depth of cut, and here we are having the angle. Angle is, this is your lambda, and this is your also lambda. Now whenever you apply the in this trigonometry, simple trigonometry, if you apply, you will get the result. It will be what? Sin lambda is equals to T by F, means T is equals to F sin lambda. So that is the very famous result in orthogonal turning. If you know uncut chip thickness, you can find out. And in next, you can write in terms of side cutting edge angle, T is equals to F cos CS. Cos CS, correct? T is equals to F cos CS. Okay, T is equals to F cos CS. Okay. Now next is your sin lambda is equals to depth of cut by width of cut. Therefore, we can write B is equals to D by sin lambda, right? And D by sin lambda, and next you can write it D by sin lambda, and next you can write it like B is equals to D by cos CS. Okay, so we are having these two results. तो ये दोनों बेटा याद रहना चाहिए ऑर्थोगोनल ऑब्लिक में ये दोनों याद रहना चाहिए. पिक्चर क्लियर? B is equals to D by sin lambda and D upon cos CS. तो चलो एक बात बताओ, तो ये चारों रिजल्ट किसमें था? ऑब्लिक में. ठीक है, ऑब्लिक में रिलेशन है किसमें? अनकट चिप थिकनेस एंड ये किस चीज में है? ये दैट इज द रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन.
relation between uncut chip thickness small t and feed in per revolution, isn't it? Got it? So this is how we come to know the relation between these two in oblique machining operation. तो oblique तो समझ गए, अब आ जाओ ऑर्थोगोनल में। तो ऑर्थोगोनल बनाओ, देखो ऑर्थोगोनल बहुत आसान हो जाएगा अब तुम्हारे लिए, ऑर्थोगोनल मशीनिंग बहुत आसान हो जाएगा। ऑर्थोगोनल टर्निंग की बात कर रहा हूं, हर जगह नहीं वैलिड है। ड्रिलिंग में मत लगा देना खुश होके ये, ठीक है? ड्रिलिंग में मत लगा देना, मिलिंग में मत लगा देना। Okay, orthogonal turning. Now come to this. Now draw the diagram of orthogonal turning. It will be like this. It will be like this, okay? And it is like this, okay? Right. So here we use what? Orthogonal cutting tool. Orthogonal cutting tool is ये vertical होगा, side cutting edge angle होगा ऐसा। तो ये हमारा है side cutting edge angle। चलो, और ये एक ऐसा आ जाएगा टूल, ये एक आ जाएगा एंड कटिंग एज एंगल, और ये हो गया टूल। कोई प्रॉब्लम इसमें दोस्त? कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारा यहाँ पे ये आ गया ऑर्थोगोनल कटिंग टूल। ओके ओके, ऑर्थोगोनल टर्निंग। तो ये हमारा एंड कटिंग एज, साइड कटिंग एज है, ये हमारा एंड कटिंग एज है यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये परपेंडिकुलर तो इससे कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है? और ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल है। ये पेनिट्रेशन जो तुम्हारा है, पेनिट्रेशन कितना, यही पेनिट्रेशन है ना, जितना पेनिट्रेट किया हो, मतलब ये वाला पार्ट और इस वाले पार्ट के बीच का डिस्टेंस। तो ये हमारा आ गया स्मॉल डी, डेप्थ ऑफ कट। अच्छा, विड्थ ऑफ कट भी तो उतना ही है जितना कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में भी इतना ही पार्ट है ना। टूल पेनिट्रेट भी उतना ही है, यहाँ पे पेनिट्रेशन भी इतना है और कांटेक्ट में भी इतना ही है। तो ये हो गया बी। तो बी इज इक्वल्स टू डी, यहाँ पे दिख रहा है बी इज इक्वल्स टू डी। और इसके परपेंडिकुलर जो डायमेंशन है हमारा, ये क्या है? अनकट चिप थिकनेस। तो जितना ज्यादा फीड दोगे, उतना ज्यादा, जितना फीड होगा पर रिवॉल्यूशन, जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही क्या होगा? अनकट चिप थिकनेस होगा, फीड। तो अगर तुम्हारा मान लो ये यहाँ पे फीड है इस डायरेक्शन में एफ, ठीक है, और इस डायरेक्शन में एक रिवॉल्यूशन में सपोज करो तुम यहाँ पहुंचते हो, जो नया पोजीशन है टूल का, नया पोजीशन जो तुम्हारा है, ये मान लो तुम यहाँ पहुंच जाते हो इस तरह, इस तरह का। तो नया पोजीशन अगर तुम्हारा ये है, तो थोड़ी देर बाद ऐसा देखो, एक मिनट दिखाता हूं मैं, मस्त दिखाता हूं, रुक जाओ। नया पोजीशन अगर तुम्हारा ये है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये टूल है, तो ये इस तरह जाएगा, ऐसे जाएगा थोड़ी देर बाद। देखो एक मिनट, देखो ये टूल है, तो ये इस तरह जाएगा ऐसे। तो ये टूल तुम्हारा इस तरह जाएगा, तो थोड़े जैसे ही एक रिवॉल्यूशन होगा ये यहाँ तक जाएगा। तो ये यहाँ तक अगर जाएगा, मान लो ये यहाँ तक गया, तो ये यहाँ तक अगर गया, तो ये इतना ही पार्ट तुम्हारा, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये खुद बताओ, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ये क्या कर देगा? रिमूव कर देगा ना। तो एफ एम एम चला और टी एम एम को रिमूव कर दिया, मतलब एफ बराबर टी। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। इसको जगह पे पहुंचा देते हैं। ये हमारा यहाँ पे आ गया वापस, पिक्चर क्लियर? अच्छा, किसी को यहाँ पर देखना है, अगर प्रॉब्लम है यहाँ पे सर एक बार दिखा दो, यहाँ पे भी देख लो बेटा।
कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो बहुत कुछ यहाँ पे उड़ जाएगा। ये मैंने बहुत ज्यादा कुछ लिख दिया, तो अभी तो मैं शायद अब नहीं दिखा पाऊँ। ये बहुत कुछ मेरे साथ ये चला जाएगा। एक मिनट, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ दिखाने का। ये मुश्किल हो रहा है, यहाँ पे मैं बहुत कुछ लिख दिया, सब चीज आ जाएगा, ठीक है। फिर भी चलो देखता हूँ कितना कुछ आता है, क्या आता है। एक मिनट। देखो अब ये जाएगा, देखो जा रहा है, ये इस तरह जाएगा। थोड़ी देर बाद ये यहाँ पर आएगा, इस जगह पे। थोड़ी देर बाद ये इस जगह पे आएगा। तो ये कितना ट्रेवल किया, एफ में लिखा हूं ना, एफ एम एम। तो फीड दोगे तो एक रिवॉल्यूशन के बाद ये यहाँ पहुंच जाएगा, एफ एम एम। तो एफ एम एम तो ये पहुंचेगा एफ एम एम, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर, ये थिकनेस है यहाँ पे इसका, ये वाला पार्ट इसका थिकनेस है, समझ में आ रहा है। तो ये एफ एम एम डिस्प्लेस करेगा एक रिवॉल्यूशन में, यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये फीड देंगे, इसीलिए मैंने इसको एफ लिखा, देख रहे हो यहाँ पे एफ लिखा हुआ है। देखो देखो यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, इसीलिए। चलो समझ गए होगे, ज्यादा नहीं समझाना है, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये एफ एम एम है, ठीक है। यहाँ पे ये एफ है, इसीलिए। पिक्चर क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो टर्निंग में आ गए, जैसे ही आ गए, तो टर्निंग इसको जगह पे पहुंचा दो। तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, डायरेक्टली टर्निंग ऑर्थोगोनल टर्निंग है। ऑर्थोगोनल टर्निंग जैसे ही देखो लिख दो, लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री और सी एस इज इक्वल टू 0 डिग्री। जैसे ही देखो आंख बंद करके लिख दो, टेंशन नहीं। यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा लैम्डा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री और सी एस नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, बट लैम्डा प्लस सी एस ये 90 होगा। ये यहां पे भी होगा, लैम्डा प्लस सी एस 90 यहां पर भी होगा। पिक्चर क्लियर मेरे दोस्त। चलो तो अब पुट कर दो। जो ऑब्लिक का रिजल्ट था क्या था, टी इज इक्वल टू एफ साइन लैम्डा था ना। तो लैम्डा 90 पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू एफ साइन 90। साइन 90 क्या होता है, 1। मतलब ये कम कितनी बार आया होगा पता नहीं मुझे भी, कि क्या बराबर होता है, अनकट चिप थिकनेस किसके बराबर होगा, फीड के बराबर होगा, किसमें, ऑर्थोगोनल टर्निंग में। दूसरा, एक तुम b इज इक्वल टू डी बाई साइन लैम्डा, अभी पढ़े ना। तो b इज इक्वल टू डी बाई साइन 90, बोलो। तो b इज इक्वल टू डी, b इज इक्वल टू डी, कोई प्रॉब्लम। मतलब विड्थ ऑफ कट बराबर होता है डेप्थ ऑफ कट के, कहा, ऑर्थोगोनल टर्निंग में। अनकट चिप थिकनेस बराबर होता है फीड के। अनकट देखो ये mm में पर रिवॉल्यूशन, तो एक रिवॉल्यूशन में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा ये mm में। मतलब इसका सिर्फ जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसके बराबर होता है। इसको मत बोलना कि सर यूनिट मैच नहीं कर रहा है, वो बाय डिफॉल्ट पर रिवॉल्यूशन है। तो b इज इक्वल टू डी, विड्थ ऑफ कट बराबर होगा डेप्थ ऑफ कट के, और अनकट चिप थिकनेस होगा फीड के। तो कभी कभी कैपिटल एफ दिया रहेगा तो इसको ऐसे निकाल सकते हो, देखो टी इज इक्वल टू कैपिटल एफ बाई एन, आरपीएम अगर दिया हुआ है तो। क्यों, क्योंकि कैपिटल एफ जो मुझसे पढ़े उनको मालूम होगा, मैं इसको डिनोट करता हूँ फीड वेलोसिटी, mm पर रिवॉल्यूशन, mm पर मिनट, mm पर मिनट, ठीक है। और ये वाला होता है हमारा रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएम। तो मिनट मिनट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा mm पर रिवॉल्यूशन में, मतलब स्मॉल एफ, mm पर रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो कभी कैपिटल एफ दिया रहे तो निकाल लेना, एक बार गेट 2015 में इस पे क्वेश्चन भी आया है। चलो तो ये तो समझ गया सर, बहुत मस्त समझ में आ गया। अब देखो इससे एक काम की बात, इंटरव्यू में क्या पूछेगा तुमसे, दिखा रहा हूं मैं। अगर तुम्हारा चिप मान लो यहां से निकलता है ऐसे, चिप समझना अच्छे से, चिप अगर तुम्हारा निकलता है इस तरह, देखो एक चिप मैं दिखा रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। इस कलर से बताऊं, इस कलर से, देखो ये चिप तुम्हारा अगर मान लो निकल रहा है यहां से इस तरह, चिप मान लो, मजा नहीं आएगा, इससे मजा नहीं आएगा, व्हाइट से ही निकालते हैं, व्हाइट है ना वर्क पीस। तो ये मान लो ये तुम्हारा ऐसा निकल रहा है, ओके। ये चिप निकलेगा इस तरह, देखो अच्छे से देखना बेटा, ये तुम्हारा चिप आ रहा है, ठीक है। ये चिप इस तरह निकलेगा,
दुआ दोगे दुआ। देखो ये चिप आ रहा है इस तरह, तो ये तुम्हारा चिप अगर निकल रहा है, ये ऐसा 3D चिप आएगा। इसको चलो मैं थोड़ा शेड कर दे रहा हूँ, थोड़ा मजा आ जाएगा। ये इस तरह का चिप आ रहा है, बोलो इसी तरह चिप निकलेगा। तुम बोलोगे सर ये तो समझ गया चिप निकल रहा है। तो चिप अगर निकल रहा है तो मुझे ये बताओ, ये वाला पार्ट तुम्हारा क्या था, विड्थ था, ये बी है ना। तो सर ये भी बी होगा क्या, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये भी तुम्हारा बी होगा। ये जो डिस्टेंस है ये तुम्हारा बी होगा। चलो समझ गया सर। सर ये वाला अगर बी है तो चिप निकल रहा है, तो चिप का परपेंडिकुलर डायमेंशन, तो ये तो हमारा बी था चिप का, और ये वाला पार्ट जो निकल रहा था तो ये हमारा एरिया है। तो अगर बात करें सर यहाँ पे, तो ये वाला परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ये विड्थ के परपेंडिकुलर, ये हमारा थिकनेस है, मतलब ये हमारा थिकनेस हो गया टी। ठीक है, तो ये हो गया विड्थ। चलो, तो ये बी है, ये टी है। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें। इस चिप को अगर एनालाइज करते हैं कि एंगल्स का इफेक्ट इस पे क्या पड़ता है, इस एंगल का, लैम्डा का या साइड कटिंग एज एंगल का इफेक्ट इस चिप पे क्या पड़ता है। तो ये हमारा चिप है, अगर ये हमारा चिप है, तो आओ चिप को निकालते हैं और चिप को देखते हैं पहले। तो चिप अगर निकल रहा है तो चिप का थिकनेस जो होगा उसको क्या बोलते हैं, बीसी। बीसी बोलेंगे ना, ये चिप का थिकनेस है ना, बीसी। और और ये वाला हो जाएगा हमारा टीसी। ओके, एक होगा बीसी, एक होगा टीसी। तो चिप थिकनेस, मतलब इसको यहां पे दिखा दे रहा हूं, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं, ये होगा टीसी। ठीक, तो ये आ गया टीसी। तो बीसी और टीसी, तो आओ चिप को एनालाइज करते हैं यहाँ पे। तो चिप को एनालाइज करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। देखो चिप को एनालाइज अगर करेंगे, चिप तो समझ गए तुम, तो यहाँ पे अगर देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि T इज इक्वल्स टू एफ साइन लैम्डा, तुम पढ़े, और T इज इक्वल्स टू एफ कॉस सी एस, तुम पढ़े, पढ़े ना। तो चलो मुझे बताओ, अगर मैं फीड को कांस्टेंट रख रहा हूं और सी एस को अगर इंक्रीज कर रहा हूं, तो सी एस अगर इंक्रीज होगा तो कॉस सी एस क्या होगा, एंगल बढ़ेगा तो कॉस की वैल्यू घटेगी, कॉस सी एस। तो कॉस सी एस घटेगा तो थिकनेस क्या होगा, थिकनेस ऑफ अनकट चिप, थिकनेस ऑफ अनकट चिप रिड्यूस होगा। और एक होता है प्रोपोर्शनल आर, स्मॉल आर क्या होता है, चिप थिकनेस रेशियो, जो कांस्टेंट होता है टी बाई टीसी। तो अगर टी घटेगा तो टीसी भी क्या होगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि इसको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, स्मॉल आर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो टीसी भी हमारा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, सॉरी मतलब डिक्रीज करेगा। तो चिप थिकनेस रिड्यूस कर रहा है। चलो दूसरा बता दो मुझे, B इज इक्वल्स टू था डी बाई साइन लैम्डा, है ना। चलो, और तो B इज इक्वल्स टू क्या आ गया, D बाई कॉस सी एस। तो मैंने एक सी एस को फिर यहां भी बढ़ाया, तो कॉस सी एस घटेगा, कॉस सी एस घटेगा, डेप्थ ऑफ कट को कांस्टेंट रख रहा हूं तो बी क्या होगा, बी बढ़ेगा। बी बढ़ेगा तो बीसी भी, क्योंकि बी और बीसी ऑर्थोगोनल मशीनिंग में असम्पशन लेते हैं कि विड्थ क्या होता है, लगभग कांस्टेंट होता है, विड्थ रिमेंस कांस्टेंट। तो क्या पता चला, क्या पता चला, पता ये चला सर कि अगर आप साइड कटिंग एज एंगल को बढ़ाइएगा टूल के, देखो ऐसा नहीं है, मशीनिंग पूरा लॉजिकल टॉपिक है। साइड कटिंग एज एंगल को अगर आप बढ़ाइएगा तो चिप का थिकनेस कम होगा और विड्थ बढ़ेगा। मतलब साइड कटिंग एज एंगल को अगर बढ़ाएंगे सर, साइड कटिंग एज एंगल को अगर बढ़ाएंगे सर, तो जो चिप होगा, चिप क्या होगा, थिनर होगा। चिप्स बिकम चिप्स बिकम चिप्स बिकम्स थिनर एंड ब्रॉडर, वाइडर, ब्रॉडर और वाइडर, राइट। क्यों, क्योंकि विड्थ बढ़ रहा है मतलब ब्रॉडर होगा, थिकनेस कम हो रहा है मतलब थिनर होगा। ठीक है। अच्छा दूसरा केस अगर देखते हैं साइड कटिंग एज एंगल को घटा के, ठीक है, सिमिलरली साइड कटिंग एज एंगल को घटा के देखते हैं तो उल्टा इफेक्ट मिलेगा। साइड कटिंग एज एंगल को अगर घटाते हैं तो उल्टा इफेक्ट क्या मिलेगा, थिकनेस ऑफ द चिप, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ इसको इंक्रीज कर रहे थे तो ये डिक्रीज कर रहा था, तो यहाँ पे इसको डिक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज करेगा, और विड्थ ऑफ द चिप क्या करेगा, ये हमारा डिक्रीज करेगा। ठीक, तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं,
और रोना नहीं, ठीक, बोलो होगा ऐसा? तो यहाँ पे जब साइड कटिंग एज एंगल को आप सर घटा रहे हो तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट ऐसा आ रहा है सर कि चिप के बारे में अगर बात करें तो चिप जो हो जा रहा है वो कैसा हो जा रहा है, चिप्स बिकम थिकर, थिकनेस बढ़ रहा है ना, मतलब थिकर, ये सब इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये सब लाइन आया हुआ है, थिकर एंड ब्रॉडर, थिकर एंड नैरोअर, ठीक। तो किसको प्रीफर करोगे, जल्दी बताओ, किसको, कौन सा चिप बढ़िया है, ये वाला बढ़िया है, ये वाला बढ़िया है? दोनों चिप को देख लेते हैं, दोनों का फोटो बनाते हैं। तो एक बार थिनर एंड ब्रॉडर, एक बार थिकर एंड नैरोअर। तो केस 1 ले लो, केस 1, व्हेन साइड कटिंग एज एंगल इज डिक्रीज्ड और लैम्डा इज इंक्रीज्ड, सेम इफेक्ट आएगा ना। तो चिप्स हमारा क्या होगा, थिकर। तो थिकर अगर होगा तो चिप ऐसा बनेगा, देखो चिप तुम्हारा ऐसा बनेगा, ये चिप तुम्हारा ऐसा बन जाएगा। बताना चिप ऐसा बनेगा दोस्त, चिप तुम्हारा ऐसा बन जाएगा। तो ये तुम्हारा जो चिप है, तो ये तुम्हारा तो विड्थ है बी, बी सी, और ये तुम्हारा थिकनेस है टी, टी सी। तो ये जो सरफेस एरिया, ये जो चिप है ना, इसे तो जब हमने चिप माज्यूम कर लिया, तो ये हमारा अगर चिप है, ये हमारा चिप है, तो इस चिप से क्या होगा, एरिया क्या हो गया, ऐसा कम हो गया ना, एरिया कम हो गया, तो जो हीट ट्रांसफर होगा, जो हीट ट्रांसफर होगा, क्यों, क्योंकि चिप क्या करता है, रेक फेस पे फ्लो करेगा ना, तो ये हीट ट्रांसफर होगा, यहाँ पे हीट का ट्रांसमिशन होगा सराउंडिंग में। तो लेस एरिया मींस लेस heat transfer because Q is directly proportional to A. Less heat transfer means less area, means less heat transfer means more accumulation of heat between the chip and the tool. More accumulation मतलब ज्यादा हीट जमा होगा, वो सराउंडिंग में तो जा नहीं पा रहा है, मतलब ज्यादा हीट जमा होगा कहां पर, टूल और वर्कपीस के बीच में। तो मोर हीट टूल और चिप के बीच में, मोर एक्यूमुलेशन ऑफ हीट, मोर accumulation of heat between chip and tool, पॉइंट है ये, मोर एक्यूमुलेशन। तो ज्यादा हीट का एक्यूमुलेशन होगा तो क्या होगा, मोर बर्निंग ऑफ द टूल, तो मोर वियर होगा, टूल वियर क्या होगा, ज्यादा होगा, टूल वियर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मोर बर्निंग ऑफ टूल, तो हाई टूल वियर, जितना बर्निंग होगा हाई टूल वियर होगा। तो टूल वियर जब ज्यादा होगा तो टूल लाइफ क्या होगा, लेसर टूल लाइफ, टूल की लाइफ कम होती जाएगी मेरे दोस्त, टूल की लाइफ कम होती जाएगी। देखो कैसे लॉजिक निकला, रटना नहीं है कुछ। साइड कटिंग एज एंगल अगर कम होगा, तो टूल लाइफ कम होगी, मतलब जैसे जैसे साइड कटिंग एज एंगल बढ़ता जाएगा टूल लाइफ बढ़ती जाएगी। केस 2 देखो, देखो मजा आ रहा है, एंजॉय, इफ रियली यू गाइस आर एंजॉयिंग द सेशन प्लीज हिट द लाइक बटन एवरीवन। केस 2, when साइड कटिंग एज एंगल इंक्रीज्ड और लैम्डा डिक्रीज। चलो साइड कट एंगल को इंक्रीज कर देंगे, तो जैसे ही इंक्रीज करेंगे, साइड कटिंग एज एंगल को इंक्रीज करेंगे, तो चिप्स बिकम थिनर। तो ये हमारा क्या है, चिप यहाँ पे थिकर है, इसको फोटो को मिला दो, कंफ्यूजन नहीं। ये वाला जो चिप, ये जो चिप की बात की गई यहाँ पे, ये इस चिप की बात की गई है, किसकी, थिकर, और ये थिकर है ना, थिकनेस ज्यादा है, थिकर एंड नैरोअर। तो अब अगला हम लोग देखने जा रहे हैं कौन,
थिनर एंड नैरोअर। तो देखो जब साइड कटिंग एज एंगल बढ़ेगा, लैम्डा बढ़ेगा, तो अब जो चिप बनेगा वो ऐसा बनेगा। देखो यहाँ पे दोस्त, देखो अच्छे से देखना, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ये ऐसा, ये हमारा ऐसा आएगा साइड कटिंग एज एंगल, ठीक है। ये इस तरह का आएगा ऐसे, ये इस तरह का आएगा। पिक्चर क्लियर? और ये ऐसा आएगा। इज इट ओके? इज इट ओके एवरीवन? इज इट ओके एवरीवन? वेरी गुड। तो ये ऐसा आ गया, मतलब ये जो चिप बनेगा सर, समझ में तो आ रहा है सर? ये वाला हमारा ये थिकनेस है, थिकनेस कम हो गया टीसी, और ये बीसी, ये वेट। वेरी गुड सर। तो यहाँ पे भी बीसी टीसी, तो इसको शेड कर दो। ये तो चिप है ना, तो ये चिप है। देखो कैसे चिप को कहां से उठाएं और कैसे दिखा रहे हैं। चलो बढ़िया, चलो बेहतरीन, मजा आ रहा है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एरिया क्या हो गया? ज्यादा ज्यादा एरिया हो गया, मतलब मोर हीट ट्रांसफर, इजंट इट? मोर हीट ट्रांसफर, मोर हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग फ्रॉम द चिप टू द टूल। तो ये थिनर चिप है हमारा, ये चिप जो है ये थिनर चिप है, ये जो चिप है ये थिकर चिप है, दोनों चिप है। पिक्चर क्लियर? तो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, जैसे ये जो पॉइंट्स मैंने लिखा यहाँ पे इसको अगर थोड़ा सा डायरेक्टली मैं कॉपी कर रहा हूं, तो यहाँ पे अगर पॉइंट्स लिखोगे तुम इसके बारे में, तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो चेंजेस होगा, क्या चेंजेस होगा यहाँ पे? मोर एरिया, मोर हीट ट्रांसफर, मोर एरिया, मोर हीट ट्रांसफर, लेस एक्यूमुलेशन ऑफ हीट। बोलो होगा? तुम बोलोगे सर मोर एरिया, वेरी गुड, मोर हीट ट्रांसफर, वेरी गुड, लेस एक्यूमुलेशन ऑफ हीट, वेरी गुड, लेस एक्यूमुलेशन ऑफ हीट, क्योंकि सब तो सराउंडिंग में जा रहा है हीट, तो लेस बर्निंग होगा, लेसर बर्निंग ऑफ द टूल, कम बर्न होगा, लेसर, लेसर बर्निंग ऑफ द टूल मींस लेसर टूल वियर, लेसर, isn't it? लेसर टूल वियर, लेसर टूल वियर। तो टूल वियर अगर कम होगा तो हायर टूल लाइफ, हायर टूल लाइफ, मतलब साइड कटिंग एज एंगल अगर बढ़ेगा तो टूल लाइफ बढ़ेगा, साइड कटिंग एज एंगल बढ़ेगा तो टूल लाइफ बढ़ेगा। इंटरव्यू में ऐसे बता दोगे, चूम लेगा, समझ गए? फोटो बना के इस तरह। पिक्चर क्लियर? मजा आया? लाइक करो प्लीज, सब्सक्राइबर बढ़ाओ मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ग्राफ बनाते हैं अपन एक ग्राफ बनाते हैं सर टूल लाइफ और साइड कटिंग एज एंगल का, तो ये वाला अगर यहाँ पे एक ग्राफ बना दो, ये टूल लाइफ है, ये है टूल लाइफ, ओके, ये है टूल लाइफ टी, ओके, और ये वाला है हमारा साइड कटिंग एज एंगल सी एस। तो कितना आसान है, सी एस बोलो, अननेसेसरी साई फाई दिमाग खराब हो जाता है मेरा, मुझे भी नहीं याद रहता है क्या सी एस, साइड कटिंग एज एंगल, सिंपल। तो सर ये अगर बढ़ेगा, ये अगर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो बढ़ाओ, बढ़ाते जाएंगे यहां तक पहुंचेगा ये, ठीक है। मतलब साइड कटिंग एज एंगल बढ़ाएंगे तो टूल लाइफ बढ़ेगा, अभी तो देखें आप बताएं, लेकिन एक सर्टेन वैल्यू के बाद फिर डिक्रीज करने लगता है। क्यों? क्योंकि वो साइड कटिंग एज जब अगर तुम बहुत ज्यादा मतलब बढ़ाने लगोगे तो एक चैटरिंग साउंड आने लगता है हीटिंग के वजह से कंटिन्यूअसली, तो इस वजह से फिर वो टूल लाइफ को मिनिमाइज करने लगता है, वहां पे वाइब्रेशंस होने लगता है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस आने लगता है। तो ये मैक्सिमम जो प्रैक्टिकल रिजल्ट है, ये मैथमेटिक्स से तो अलग रिजल्ट आता है, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पूछे कि साइड कटिंग एज एंगल यहाँ पे बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, यहाँ पे क्यों घटने लगेगा? चैटरिंग साउंड, चैटरिंग साउंड, चैटरिंग साउंड की वजह से घटने लगता है, वाइब्रेशन, ठीक है, वाइब्रेशन। तो अप टू अ सर्टेन लेवल, तो ये हमारा ऑप्टिमम है, यहाँ पे टूल लाइफ क्या होगा? मैक्सिमम।
तो इसी को प्रीफर करते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम टूल लाइफ है टी मैक्स, और इसकी वैल्यू जो यहाँ पे है ये 25 से 30 डिग्री के बीच में जनरली होगी, तो मैक्सिमम होगा। पिक्चर क्लियर? और यहाँ पे तो लॉजिक दिया मैं क्यों बढ़ेगा, तो अगर एग्जाम में आए तो बोलना फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। डिक्रीज का रीजन ये है, ऐसे जनरल आ जाए तो इंक्रीज है ना, लेकिन एक्चुअल केस में फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो ये हमारा एक्चुअल ग्राफ है। और लॉजिक पूछे कि कैसे इंक्रीज करेगा, तो भैया ये बता देना पूरा, एकदम धागा खोल देना, ये वाला बता देना पूरा, एक एक चीज बता देना, सीएस बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। और अब सुनो काम की बात, तो ये तो मैंने पढ़ाया, मैंने अपने तरफ से तो पढ़ाया, अब क्या पता आपको मजा आया कि नहीं। अगर लिटरली में मजा आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ। मैं लिटरली में पूरा लेक्चर डालूंगा, लेक्चर 1 लेक्चर 2, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे रिस्पॉन्स उतना अच्छा कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ लोग उतना ये नहीं हो रहा है। तो मैं लेक्चर 1 लेक्चर 2 पूरा मैन्युफैक्चरिंग का डालूंगा। 20 मार्क्स का मैन्युफैक्चरिंग आता है गेट में दोस्त, 20 मार्क्स का। तो इसको नजरअंदाज मत करो, हल्के में मत लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं पूरा सीक्वेंस बना के डालूंगा, आप फीडबैक दो मुझे अच्छे से, आप कमेंट बॉक्स में लिखो और मुझे बताओ, और लाइक करो, प्लीज शेयर करो इसको, इस लेक्चर को जितना शेयर कर सकते हो। आप जाओ यूट्यूब पे, बहुत सारा लेक्चर है, लेकिन आप देखो जाके कि इस तरह का ड्राइंग बना के आपको अगर कोई पढ़ाया हो, आपको कोई बताया हो, तो आप मुझे बताना। आप एक बार जाके देखो, इस तरह का एक एक वर्ड मैंने लिखा है, सारा चीज अच्छे से। तो आप रिटर्न गिफ्ट मुझे दो प्लीज। अगर आपको लिटरली में पसंद आया है तो आप इसको शेयर कीजिए और पढ़िए, ठीक है। और एक बुक पढ़िए और क्वेश्चन बैंक बनाइए 4 से 5 बार, वर्कबुक सॉल्व कीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी डाउट हो उसको पूछो। मेरा लाइव लेक्चर ऑल्टरनेट डे रहता है, कल सुबह में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, आप देखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे लाइव होगा। और दूसरी बात, ये मेरा टेलीग्राम चैनल जीआई क्लासेस, उस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर ये आप नोट नहीं कर पा रहे हो, आपको पीडीएफ चाहिए, तो पूरा का पूरा पीडीएफ आपको कहां पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पे। उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और जिनको भी लेक्चर्स चाहिए स्पेशल, तो मेरा जूम का क्लासेस आप पर्सनल ज्वाइन कर सकते हैं जूम पे, बहुत ही नॉमिनल चार्ज है। जूम पे मेरा लेक्चर ज्वाइन कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, इस पे कांटेक्ट कीजिए। और मैं गारंटी देता हूं कि आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, थर्मल में। तो जो भी मैं टॉपिक लेता हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो आपका मशीन डिजाइन, उसमें एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, आई कैन गारंटी यू। ओके, लव यू ऑल, थैंक यू, गुड बाय, सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो, बाय, सी यू।